इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर कल्चर ने जॉइंटली होस्ट किया है। ये तीसरी वार्षिक संगोष्ठी है। फर्स्ट was held in 2018 where most of us were present, and that was held in Bodh Gaya. The second, of course, we had in Delhi itself at this center, and this is a third series, and it is on focused on heritage, culture, and sustainable development, especially in the context of जो आज का माहौल है post COVID. The importance of Buddhist ideology, the importance of Buddhist thought is even more important. They call it's a new normal, new India, in which not only we fear each other, but we also come to live with a situation where technology has taken over the physical meeting of various persons. When we thought about this, particularly the plenary session or inaugural session, which you call, because earlier, particularly I mentioned the Buddha, in fact, always believe in Madhyam Marg. So this is a connect both nature of the particularly this session, plenary and the inaugural. Fine. The year of 2020 has so far been a difficult time for mankind as a whole, owing to the unprecedented crisis presented by the coronavirus. Mankind has faced up to these crises by drawing strength from its spirits of civilization and collective conscience, which has given this society the strength to take the Bodh Gaya Global Dialogue forward. On behalf of the ISKA Society and Indira Gandhi National for the Arts and the partner organization, primarily in this process, we have developed the memorandum of understanding with very internationally known institution, Indian Council of World Affairs. So, Indian Council of World Affairs, one of the integral part of this program since beginning of the dialogue. We are privileged to welcome the delegates and participants in this program on this Bodh Gaya Global Dialogues. We express our deepest gratitude for honoring our invitation at a very short notice during these trying times. We are extremely grateful for the gracious presence of Dr. D.A. Mule, Honorable Member of NHRC, Dr. Shakti Sinha, DG of International Buddhist Confederation, and Sri Ganga Kumarji, Joint Secretary, Government of India, for being the guest of honor at the on the inaugural session of this dialogue. Dr. Shekhar Dutt, author and former governor Chhattisgarh, will also join us online, being a guest of honor. It is indeed a privilege for us. Dr. Sachithanand Joshi has kindly given consent to chair the inaugural session. Despite the very brief introduction of the this those who are sitting the dais, I would like to take the opportunity to share very briefly on the esteemed guest on the dais with august audience. To some extent, which I am expressing, to some extent, you can say it is my feeling. I take the opportunity to share my feeling with the august audience. Dr. Mule is a well-known personality as a writer and diplomat in India. I always feel he is one of the finest human being in my life. We have all gathered here today for expressing the unveiling the third edition of the Bodh Gaya Global Dialogue, the creative platform for expression of experiences, reflection, and insight from plural perspective, connecting heritage, education, and sustainability. The key objective of the dialogue, particularly the third edition of the dialogue, to create a ground for an institutional and sustainable knowledge base through the online course on Bodh Gaya as well as Bodh Gaya Multimedia Digital Center. To deal with the crux of the dialogue, I define it is a mosaic of parallel events. Through the two upcoming days, the third edition Bodh Gaya Dialogue would have detailed deliberation of the theme Buddhism, philosophy, and heritage, share histories and common destiny, connecting India to South Asia and Southeast Asia through the journey of Buddhism. The third edition of the dialogue would create a ground for the fourth edition of the dialogue in order to keep endeavor in heritage, sustainable development, and enlightenment with a special reference to online course on Bodh Gaya and Digital Heritage Center. बोध गया जब गौतम बुद्ध के ज़माने में
उर्वेला माना नाम से जाना जाता था, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं। बाद में क्योंकि जब बौद्ध वहाँ प्रचार काफ़ी हो गया तो लोग उसको कहने लगे समबोधि, कि यही बौद्ध मिला है, यही टोटल एनलाइटनमेंट मिला है, समबोधि। कुछ शताब्दी बाद सम्राट अशोक गए, वहाँ मंदिर बनाए और एक बहुत अच्छा वज्र आसन बनाए बोधि पेड़ के बगल में, आज तक है वो आसन, तो इसलिए उसका नाम हो गया वज्र आसन। और फिर बदलते बदलते समय से महाबोध, बोध, कई वर्ड बदलते रहे, टिल जाके 20वीं सदी में उसका नाम पड़ गया बौद्ध गया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक चीज हमें समझनी चाहिए बुद्ध के टीचिंग से, उसको कहते हैं अंग्रेजी में इम्पर्मानेंस, अनिश्चय। कोई ऐसा चीज नहीं है जो हरदम वैसी फॉर्म में हरदम रहेगा। हर चीज है, इट हैज ए लिमिटेड शेल्फ लाइफ। पृथ्वी हो, कुछ हो, प्रकृति हो। ग्रेट, आप देखिएगा जब बिग बैंग आया था से लेकर अब तक कितना बदलाव आया है। तो बदलाव से हमें डरना नहीं चाहिए, बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि हर चीज़ का कॉज होता है। इट मे बी एन इनएडवर्टेंट कॉज एंड इफेक्ट हरदम होता है। तो इसीलिए उस एटीट्यूड के साथ चले हम, ये नहीं घबराएं कि जो अरे अब बीत गया अब क्या करें, कुछ नहीं। हर चीज़ का अप एंड डाउन होता है। गलतफहमी भी बहुत हमारे दिमाग में है। शंकराचार्य आया तो ये हुआ, सब खत्म हो गया। भाई बौद्ध गया वॉज पेटर्नाइज्ड बाय द रूलिंग पाला डायनेस्टी 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक लोकल बुद्धिस्ट कम्युनिटी खत्म हो गया, आवश्यक बात है, धीरे धीरे खत्म हो गया। परंतु थाईलैंड से, बर्मा से, श्रीलंका से लोग आते रहे। 13वीं शताब्दी में बागान में म्यांमार के राजा ने एकदम वही साइज छोटा है, वही स्केल से महाबोधि टेम्पल बनाया। ये गांव जो है जिसको हम बौद्ध गया जानते हैं, ये टेकारी राज का पार्ट था, बहुत पुराना। टेकारी राज मुगल ज़माने से वहाँ के जमींदार से, पुराने गया डिस्ट्रिक्ट के साउथ के। 19वीं सदी के बीच में टेकारी महाराज जो थे वो माइनर थे, तो जमींदारी चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स एस्टैब्लिश किया था, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के चेयरमैन थे डीएम, आज भी जो टेम्पल कमेटी के चेयरमैन डीएम ही है। तो किंग ऑफ थाईलैंड उनको अप्रोच किए कि ये हमारे लिए बड़ा सीक्रेट साइट है, इसको आप हमें बेच दीजिए। सो द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अग्री टू सेल द विलेज ऑफ बौद्ध गया। जमींदारी में तो बिकता ही था, जमींदारी ही बिकता था, तो ये गांव उन्होंने डिसाइड किया हम बेच देते हैं किंग ऑफ थाईलैंड को, हमारा क्या लेना देना इससे। लोग थे, महंत थे वहाँ। अब वहाँ कम्युनिटी खत्म हो गया तो महंत भी बहुत से सनातनी बन गए, दूसरी बात है, दूसरे मूर्ति उर्ति लगाए। मगर टेकारी राज के एक मैनेजर थे, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया। इज ओल्ड पर्सन, वो दरखास्त लिखना शुरू किए लाट साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल को, बड़े लाट को, गवर्नर जनरल को, केस फाइल किया, ये हुआ वो हुआ। तो फाइनली अंग्रेज राज ने बैकआउट किया और ये गांव को नहीं बेचा किंग ऑफ थाईलैंड को। अब एज ए हिस्टोरियन मेरे दिमाग में घूम रहा है काउंटर फैक्चुअल, अगर ये गांव बिक जाता टू द किंग ऑफ थाईलैंड, तो आज़ादी के बाद जब हमने ज़मींदारी अबॉलिश की, तो क्या बिहार सरकार या भारत सरकार ज़मींदारी अबॉलिशन में किंग ऑफ थाईलैंड का जो ज़मींदारी था ओवर द विलेज ऑफ बौद्ध गया, उसको अबॉलिश कर सकते कि नहीं कर सकते? हम लोग गांधारा की बात करते हैं, गांधारी की बात करते हैं। मैं अफगानिस्तान में 3 साल रहा हूँ, मुझे भी गलत फहमी थी कि कांदाहार और गांधार एक ही चीज़ है। गलत है। गांधार जो है काबुल शहर से, काबुल नदी के साथ साथ जलालाबाद होते हुए आज के पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, चरसड्डा और अटक तक, दैट इज़ गांधारा वैली। तो गांधारन सिविलाइजेशन जो हम बात करते हैं कांदाहार नहीं है, वो ये पोर्शन है जिसको अब हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं, ये जानते हैं, दैट इज गांधार सिविलाइजेशन। और so there's so much we have to do, so much we have to connect. आपने स्टोरी शुरू किया, मैं पढ़ रहा था आंदीजान से, जो बाबर का होम टाउन है फरगाना में, जहाँ बहुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू डेटीज़ का, बहुत ही ज़्यादा। तो एक ज़माने में इट वाज अ सेंटर फॉर बुद्धिज्म, सेंट्रल एशिया वॉज, बट एक बार इन्वेजन शायद चेंज हो गया, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड आई एम अगेन नॉट सेइंग पुटिंग ब्लेम ऑन एनीबडी कि इससे ख़राब किया, इसने जलाया, जो हो गया सो हो गया।
how do we live in the present and move forward? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का एक संवाद जो है यहाँ पर आज हो रहा है। पिछले 3 साल से मैं इससे जुड़ा हूँ, लेकिन जो बुद्धिस्ट थॉट है, विचार है, उससे मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अनेक तरह से जुड़े हुए हैं। और ये जुड़ना जो है हमारे भारतीय संस्कृति में, आप जब जुड़ जाते हो तो हम लोग कहते हैं कि जन्म जन्म के हमारे संबंध है, ऋणानुबंध बोलते हैं हम मराठी में उसको। पता नहीं कौन से जन्म का कौन सा जो है ऋण है हमारे ऊपर, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब पहली बार, मुझे याद है संजय जी आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि इस तरह का हमें एक बोध गया डायलॉग शुरू करना है, तो बातों बातों में मैंने कह दिया कि इसका जो एक थीम होना है, रनिंग थीम, एक झरना जो हमेशा बहते रहना चाहिए, सतत बहता रहना चाहिए, वो होना चाहिए कि डेवलपमेंट एंड एनलाइटनमेंट। क्योंकि इसमें एक संघर्ष भी है और इसमें एक सामंजस्य भी है। डेवलपमेंट जो है वो अगर एनलाइटनमेंट के खिलाफ जाता है, जो बुद्ध का मैं समझता हूँ कि उसके उपदेश का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है, तो हमारे हर व्यक्ति के जीवन में, सामूहिक जीवन में, एक राष्ट्रीय जीवन में, और मैं समझता हूँ कि पूरे जगत के जीवन में एक एनलाइटनमेंट की, ज्ञान के प्रकाश की ज़रूरत है। ये एक मैंने कहा ये हमेशा आप कहीं ना कहीं से इसको ये जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमें इसका जो भान है, अवेयरनेस कि किस लिए आए हैं, को हम और कुतो हम गच्छामि, मैं कहाँ से कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, ये जो हमारे संस्कृति में प्रश्न पूछे गए हैं, उसी से संवाद जारी है। और आज भी आदमी ने डीएनए, शायद गुणसूत्रों को पहचाना होगा, खून का एनालिसिस और विश्लेषण और पृथक्करण चल रहा है, आजकल वायरस को कैसे जगाना है और कैसे मारना है, इसके ऊपर बड़ा युद्ध जारी है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इसका पर्पस जो है वो समझना ज़रूरी है। और बुद्ध के जीवन का अगर कोई सार है तो यही है कि वो बताते हैं कि क्यों हम आए हैं और उसको किस तरह से व्यक्त किया जाए। बड़े सारे अभिव्यक्ति के तरीके हैं, बताने के तरीके हैं, लेकिन समझता हूँ मैं भगवद गीता में एक श्लोक है जो इस ज्ञान के जो अलग अलग पायदान है उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है। वो है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास करने से ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान अच्छा है, जिसका मेडिटेशन का, चिंतन का, मनन का जिक्र यहाँ हुआ। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागम त्यागात् शांतिरनंतरम। ध्यान से भी कर्मफल का त्याग महत्वपूर्ण है, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग। और ये जब करेंगे आप, तब आपको शांति मिलेगी। ये शांति का मतलब है एनलाइटनमेंट। शांति में आपको उस दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है जो आप अशांति में नहीं कर सकते, इसीलिए शांति की जरूरत है। इसी का बुद्ध ने जो है पूरे कितने सालों वो भटकते रहे, घूमते रहे, अनेक गुरुओं को उन्होंने स्वीकारा, फिर नकारा भी, और फिर आगे चले गए। उनको लगा कि अब ज्ञान की पूर्ति हो गई, मुझे जो मेरा जो घड़ा था वो भर गया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ अंदर से मैं, तो और आगे चलना चाहिए। चलते रहे, तपस्या करते रहे, एक जगह तो इतने सूख गए वो कि स्टार्विंग बुद्धा के हमने जो देखे हैं वो बस हड्डी फसलियाँ बची है उनकी, उससे भी वो उभर आए। उनको लगा कि इस तरह के त्याग का कोई खास मतलब नहीं है, और फिर वो अंतिम अपने जो है एनलाइटनमेंट तक पहुँचे। तो उस एनलाइटनमेंट का हमारे इस विकास की जो परिकल्पनाएं हमने बनाई है पिछले 200 साल में, उससे क्या संबंध है, इसको तर्कशुद्ध तरीके से देखकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ कि बोध गया डायलॉग का एक बेसिक थीम हमेशा रहना चाहिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। बोध जिसको हम एनलाइटनमेंट के बारे में सोचते हैं, और दूसरा है कि वैश्विक या ग्लोबल डायलॉग की बात चल रही है। ग्लोबल को आप, क्योंकि हमारे जो भारतीय परंपरा में ग्लोबल को
जगत और विश्व को अलग माना गया है। जगत जो है वो विश्व का भाग है, जैसे वसुधैव कुटुंब कहते हैं वो जगत का भाग है। लेकिन आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, मतलब पूरी दुनिया से जितना, पूरी विश्व से जितनी अच्छी बातें हैं वो मेरे तक पहुँची जाए, ये जो है वो विश्व है। और ये मानता है हमारा, मतलब 2-3 चीज़ों में हम और पाश्चात्य देश जो है उनकी फ़िलॉसफ़ी में फ़र्क जो है वो क्या है, इसके बारे में इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि उनके लिए अक्सर जो है जगत ही विश्व बन चुका है। तो और उसी लिए हमारे यहाँ कहते हैं जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जो ब्रह्म है वो यूनिवर्स की तरफ दर्शाता है, और जगत जो है हम जिसको फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं वो जगत है। तो वसुधैव कुटुंबकम हम जब कहते हैं तो ये वर्ल्डली जीवन में हम जीते हैं, तो ये जो कुटुंब परिवार है वो हमारी वसुधा है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है ये समझना कि ये विश्व जो है वो बड़ा है और हम उसमें बहुत इनसिग्निफिकेंट है, इसमें इम्परमानेंस है, आज है कल नहीं है, ये वास्तव है। मतलब इसको ना पाश्चात्य नकारते हैं ना हम नकारते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि पाश्चिमात्य देश जो है समय की परिकल्पना लीनियर में करते हैं, एक रेखा है, एक्यूमुलेट करते जाओ, संस्कृति का एक्यूमुलेट करो, ज्ञान को एक्यूमुलेट करो, धन को एक्यूमुलेट करो। हमारे यहाँ वो कल्पना नहीं है, हम मानते हैं कि एक चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च, ये हमारे यहाँ कल्पना है कि ये समय बदलेगा। और पाश्चिमात्य संस्कृति के विचार का एक नतीजा ये हो गया है कि पर्यावरण का विनाश हो रहा है, क्योंकि वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, चाहे वो विचार हो, धन हो, सपोर्ट हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में जो है बिल्कुल एक तरह से बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गया, ये जानते हुए कि मैं ज़िंदा नहीं रहने वाला हूँ कुछ दशकों के बाद, कुछ सालों के बाद। हमारे यहाँ ये है कि अरे ये तो बदलने वाला है, तो बाबूजी धीरे चल, ये हमारे संस्कृति में बहुत अच्छे से प्रस्थापित हो चुका है। दूसरी बात क्या है, हम कहते हैं एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और हम सब लोग जो है अलग अलग विचार के, वो अभिव्यक्ति है मेरी ही, एक तरह से अलग अलग अभिव्यक्ति है, एक से ही सब निकला हुआ है। पश्चिम का, जैसे अमेरिका का जो थिंकिंग पैटर्न है वो ये कहता है अ प्लुरिबस उनुम, मतलब हम बहुतों से हम एक बन गए। इधर कोई अमेरिका से आए, कोई भारत से आया, कोई चीन से आया, कोई जापान से आया, नीदरलैंड से आया, कोई स्कॉटलैंड से आया, इंग्लैंड से आया, जर्मनी से आया, फ्रांस से, फिर हम अमेरिका बन गए। तो प्लुरिबस उनुम, तो इसमें जो है एक बेसिक डिफरेंस इसमें एक्सेप्ट किया गया है। हमारे यहाँ एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिजन, हम सब लोग एक है अंदर से, इसलिए मैं विविधता में एकता इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हम है ही एक, लेकिन परंपराएं, हमारी श्रद्धाएं, हमारे धर्म की रीतियाँ ये अलग अलग है, ये अभिव्यक्ति का भाग है, मूल रूप से हम एक है। मैं समझता हूँ कि ये जब समझेंगे हम, उसके बाद ही बोध गया और संवाद की स्थापना तभी हो सकती है कि हम ये माने कि मूलतः हम एक है, अभिव्यक्ति अलग अलग है, इसलिए संवाद की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो यूनिटी है बेसिक, उसको अगर बरकरार रखना है हमको, तो हमारी विविधता भी जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम अंदर से एक है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे और पाश्चात्य विचारों में एक महत्वपूर्ण फ़र्क है। हम अंदर, इसीलिए तो हम कहते हैं अयम बंधुरयम नीति मनसा लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो पूरी दुनिया को अपना घर ही मानते हैं, परिवार मानते हैं। ये हमारी सोच है। पाश्चात्य लोगों ने भूमि को अलग अलग देशों में नाम दे दिए, उनको संकीर्ण कर दिया, सीमाएं तय कर दी, उसको बिल्कुल कभी यहाँ मैकमिलन रेखा के नाम से जानो, कहीं और की रेखा से नाम से, ये हो गया। हमारे यहाँ पहले भूमि थे, जन्मभूमिश्च, इस तरह का संकल्प था। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जब हम आगे जाकर बोध गया संवाद की एक परिणति के स्वरूप में हम जब यह केंद्र प्रस्थापित करेंगे,
तो बोध गया को ज्ञान का केंद्र, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ज्ञान के केंद्र होने चाहिए उसके, और ज्ञान के केंद्र ऐसे होने चाहिए कि जो विश्व की आज की हमारे दुनिया ने परिकल्पनाएं अलग अलग बनाई है, उससे आगे जाकर एक नया दृष्टिकोण, एक नई विजन जब हम दुनिया के सामने रखेंगे, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। हमारे यहाँ शंकराचार्य को जगत गुरु कहने की परंपरा है ना? तो जगत गुरु कैसे बनेंगे हम लोग? जगत गुरु तब बनेंगे कि जैसे बोध गया जैसी जगह है, जैसे महाराष्ट्र में आळंदी है जहाँ पर ज्ञानेश्वर का स्थान है, ऐसे जो शक्तिपीठ जिनको हम मानते हैं वो ज्ञान के भी पीठ बनने चाहिए असली मायने में, जहाँ लोगों को वादे वादे जायते तत्वबोधः कहते हैं। वाद, संवाद का मतलब है कि संवाद से तत्वबोध होना चाहिए, ये हमारे यहाँ पारंपरिक जो है विचार है। लेकिन कई बार होता है कि वादे वादे जायते शीर्षभंगः, वाद करते करते जो है हमारे एक दूसरे के शीर्ष भंग हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के सर तोड़ने की नौबत आती है। संवाद का जब अभाव होता है तो सर टूटते हैं। जब संवाद होता है तो उससे जो है आगे संगच्छध्वम समवदध्वम, सब मिलके एक सुर एक ताल जिसको बोलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला जो है वो संगीत जीवन में पैदा हो जाता है। इसलिए बोध गया संवाद का एक अलग महत्व जो है वो वैश्विक स्तर पर है, जागतिक स्तर पर है, और हमको ज़रूर आगे ले जाना चाहिए। बोध गया डायलॉग के बारे में ये तीसरा संस्करण है, उसके लिए IGNCA और देशकाल सोसाइटीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का बड़ा छोटा पहलू ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्जेंस, जैसे भी बहुत सारे महानुभावों ने बोला इनलाइटनमेंट, मैं इनलाइटनमेंट को मैं बड़ा अलग तरह से देखता हूँ। मतलब मैं चेयर के उस तरफ जाके सोचता हूँ इनलाइटनमेंट होता क्या है, मैं बात करूँगा अभी उस पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आदमी कोई जो हो, जैसे कोई चेयर पे बैठा होता है, उस चेयर पे बैठ के अगर कुछ सोचता है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ या DG हूँ या सेक्रेटरी हूँ या कुछ भी हो, आप चेयर के दूसरी तरफ जाके देखो, लोगों के बीच में रहो, तब शायद आपको उसकी सार्थकता एवं उसके जीने का रहस्य पता चलता है, और तब आप सोचो कि चेयर पे बैठे हुए लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आप चीज़ों को समझ सकते हो। जब बोध गया की बात आती है तो बचपन से लेकर आज तक मेरे मन में केवल 3 चीज़ आती है। पहला, और मुझे लगता है हर वो गांव का लोग जो बुद्धा से अपने आप को जोड़ना चाहता है, वो 3 चीज़ों से जोड़ना चाहता है। पहला, बुद्ध थे क्या? तो बुद्ध इक्वल टू क्या था? रिलीजन तो बहुत सारे रिलीजन है। बुद्ध और हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो मैं एक ही जगह पे जाके टिकता हूँ कि मुझे मिलता है कि और रिलीजन से इसमें क्या अलग था। केवल समझ में आता है समबोधि और महाबोधि, इनलाइटनमेंट की जो बात कह रहे थे सर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं सोचता हूँ कि इसको हम लंबे समय तक कैसे सस्टेन करा सकते हैं। आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, आर्ट, हेरिटेज एंड रिलीजन ऑफ बोध गया। सोचिए तीनों चीज होता क्या है? क्या आर्ट की सारी विधाएं हेरिटेज का हिस्सा हो सकता है? क्या रिलीजन का हिस्सा हेरिटेज और आर्ट हो सकता है? और अगर बिहार में अगर आया है तो बिहार की ऐसी क्या खासियत है कि इन तीनों में कुछ चीज़ें कनेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। मैथमेटिकली टर्म में क्या होता है? वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों पे मुझे आके मैं टिकता हूँ। एक सर मैं टिकता हूँ टेंजिबल एसेट्स जो बोध गया है। सेकंड आर्किटेक्चर जो कला की भी विधा है। और आप अगर आप देखेंगे तो बिहार की जितनी बिल्डिंगें, आप जब थाईलैंड जाएं, मलेशिया जाएं, जापान गए, सारी जगहों पे मैं गया हूँ, तो मैंने देखा है कि आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी आपको सिविलाइजेशन में मिलेगा, वो रहता है उसका आर्किटेक्चर। ये दो के अलावा तीसरा, अगर आप लंबे समय तक अगर आप जनमानस में कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो होगा इंटेंजिबल हेरिटेज। बिहार के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हम कला को केवल टेंजिबल एसेट के रूप में देखते हैं, या पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कह रहा हूँ।
शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि जनमानस में इन चीज़ों को नहीं समझा गया कि हम जब तक फीलिंग नहीं लाएंगे किसी रिलीजन के बेसिक इंस्टिंक्ट को, तब तक ना हम कला से जुड़ पाएंगे, ना हम हेरिटेज से जुड़ पाएंगे। आप बिल्डिंगें तो देख सकते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग लिथोलिक कल्चर का है या उस पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है या जैसे गांधार का आपने सिविलाइजेशंस बोला, वो आप फील नहीं करोगे। अगर हर कुछ टैंजिबल हेरिटेज से हम देखेंगे, जो बोध गया केवल बन के रह गया है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बोध गया को मैं आज केवल टैंजिबल हेरिटेज के रूप में देख पा रहा हूँ, मैं फील नहीं कर पाता हूँ कि इंटैंजिबल है क्या। जैसे अगर कोई सोचो कि अगर कोई बिरहा गाता है और मान लो कि आप सामा कोदो के ऊपर में गीत चलती है या नट नटनी का गीत चलता है, क्या होता है? ये एक जन्म जन्मांतर से सदियों से चली आ रही एक प्रथा है, जो एक आदमी, उसका बाप मरता है, फिर बच्चा होता है, उसका पोता होता है, वो कल्चरली एक दूसरे को कुछ देते हुए चला जाता है। 5,500-2,500 साल पुरानी ये बौद्ध रिलीजन है। 563 BC की अगर हम बात करें तो, जैसे साहब ने बोला सिद्धार्थ, क्या ऐसा कारण है, कभी आपने सोचा है कि हिंदुस्तान जो जननी रही है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिलीजन, जो 500 मिलियन से ज़्यादा लोग बोलने वाले लोग, फिर हिंदुस्तान से ही आए और हिंदुस्तान से ही धीरे धीरे आगे क्यों चले गए? कभी आपने सोचा है? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोगों के बीच में इनलाइटनमेंट जो फीलिंग है वो नहीं ला पाए उनके बीच में। आप बिहार में जाएं, बोध गया के 100 किलोमीटर के दायरे पे, क्योंकि हमारा हेल्थ कैंपेन चलता है, तो मैं अभी भी, आप सोचे 1 जून से आज तक में मैं 22 फ्लाइट यूज कर चुका हूँ इस कोरोना के टाइम में। कम से कम मैं 100 से ज़्यादा गांव गया। कभी आप जाए बोध गया जहाँ, या वैशाली जिला जहाँ मेरा घर है, मैं पूछता हूँ बुद्ध थे क्या, तो बोलता है बोध गया। फिर मैं पूछता हूँ बोध गया है क्या, तो यहाँ एक मूर्ति पड़ी हुई है। तो जब आप कन्वर्ट नहीं करोगे चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी के रूप में, जब इसी 20 लोगों के बीच में ही बुद्ध धर्म चलना है, तो नहीं चल पाएगा। बहुत सर, एक मैं बड़े कभी नहीं चल पाएगा। इंटेलेक्चुअल्स किसी भी रिलीजन को, किसी भी कल्चर को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल्स तभी उसको सस्टेन करा पाएंगे जब उसको टेंजिबल अप्रोच को इनटेंजिबल वेलबीइंग एंड थॉट्स में लेकर हम उसको जनरेट कर पाए, तभी हम कर पाएंगे। अदरवाइज कहने की बातें रह जाएंगी बहुत सारी बात। मैं बोधिसत्व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पहले 2 साल पहले किया था। दुनिया के करीब 35 कंट्री के लोग बिहार आए थे। बुद्धिज्म पे मैंने एक पूरा फुल हाफ डे फिल्म चलाया था। उसमें बड़ी फिल्में चली थी बुद्धिज्म पे। मैं सारे लोगों से केवल यही कहता था, कुछ ऐसी फिल्म बनाओ जो गांव के लोग समझे। जिस तरह जैसे होता है ना, हम कहते हैं क्लासिकल का म्यूजिक, और एक जो होता है हमारा जो गांव का जो अलग अलग चलता है, जो रूरल पे चलता है। जैसे बिहार की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, यहाँ बहुत टाइम लगेगा। तो उसको जनमानस से क्रिएट करो, जनमानस से जनरेट करो। जिस तरह से योगा आप देखते होंगे, दुनिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट और सबसे अच्छा बेहतरीन इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा सर मुंगेर में है। क्यों नहीं कभी योगा पूरी हिंदुस्तान में लोग समझ पाए? कभी आप सोचा है आपने? क्यों बाबा रामदेव, मैं किसी व्यक्तिगत की इसमें, क्यों बाबा रामदेव या इस तरह के जो यंग जनरेशन में लोगों के बीच में ला पाए? क्यों वर्ल्ड योगा डे मनाया गया? क्योंकि इसको हमने जनता से कनेक्ट किया। बिना जनता से कनेक्ट किए न सरकार चल पाएगी, न देश चल पाएगा, न धर्म पर चल पाएगा, न रिलीजन चल पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ये सोचने की ज़रूरी है। डायलॉग में हम हमेशा एक बिंदु को मैं हमेशा जो ध्यान रखता हूँ, वो यही रखता हूँ कि आप एक दूसरे को कनेक्ट करो, संवाद करो। जैसे सर ने बोला, संवाद केवल इंटेलेक्चुअल्स में नहीं, संवाद एक पृष्ठभूमि के लोगों को दूसरी पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में संवाद होना चाहिए। और एक किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे बुद्धा जी ने किया था इनलाइटनमेंट, चाहे वो संबोधि हो या महाबोधि हो, उसको एक पृष्ठभूमि के लोगों को दूसरे पृष्ठभूमि के बीच में पहुंचाने के लिए
डायलॉग करो उस चीज़ पे, उनको बताओ कि क्या चीज़ है, कहाँ हो आप। बोध गया जाने की जहाँ तक बात है, तो मैं टूरिज़्म को मैथमेटिकली देखता हूँ। टूरिज़्म इक्वल टू कल्चर, जिसको आप टैंजिबल हेरिटेज बोलते हैं। इंटैंजिबल तो सर हम यहाँ पे भी बैठ के देख सकते। बोध गया प्लस लॉ एंड ऑर्डर प्लस कार प्लस होटल प्लस सो मेनी थिंग्स। मैथमेटिकली आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ये होता है। लेकिन कल्चर कैनॉट बी इक्वल टू द टूरिज्म। जिस जगह पे जिसके पास दिल नहीं हो, उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। तो टूरिज्म शरीर है, कल्चर दिल है उसका। कला की 7 विधाओं में एक बहुत इम्पोर्टेंट विधा होती है हमारा परफॉर्मेंस, और दूसरा फ़िल्म। ये जो हम आई मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द आर्टिस्टिक अप्रोच ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो इसको कहीं न कहीं आप फ़िल्मों के माध्यम से लोगों के बीच, जनमानस के बीच में लेकर जाएँ। और दूसरा चीज़, लोगों को इस ऑनलाइन कोर्सेज में इन चीज़ों को ज़रूर लेकर आएँ कि बुद्धा क्यों इम्पोर्टेंट है। नॉट बिकॉज़ ऑफ एनलाइटनमेंट ओनली, बट बिकॉज़ ही हैज़ चेंज्ड द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल। जनमानस को चेंज किया है। ये 2 चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हम ऐसे इन सब चीज़ों को अगर लोगों के बीच में लेकर जाएँ, उन्हें बताएँ, उन्हें समझाएँ, उन्हें दिखाएँ, तो हम शायद जो जो राइट स्पिरिट जिसको कहते हैं, बुद्धिज़्म इन आवर अप्रोच, बुद्धिज़्म इन आवर लाइफ, बुद्धिज़्म इन आवर थॉट, वो आ पाएगा और हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। This subject is of great interest, especially to India, because India has been the birthplace of Prophet Buddha, and it indeed has given birth to this philosophy. I would call it philosophy, religion, and it has influenced not only Asia but also the world. So it is very good that Bodh Gaya Book Dialogue was started, and this is the 3rd edition. And I thank Dr. Joshi and his team for hosting this, along with Deshkal. Buddhism, as one of the 4 major religions of the world today, is an empiristic and metaphysical religion. When the Buddha taught, what the Buddha taught is not only for the 6th century BC, but it is timeless teaching. Surely it can be practiced by the wise during 21st century as well, and in many more centuries or millennia to come. Buddhism has a special role to play in the modern world because, unlike many other religious traditions, Buddhism uniquely propounds the concept of independence, which accords closely with the fundamental notions of modern science. Tibetan spiritual leader, the Venerable Dalai Lama, has said that 20th century was a century of war and violence. Now we all need to work to see that the 21st century is that of peace and dialogue. We can think of Buddhism in terms of 3 major categories: philosophy, science, and religion. The religious part involves principles and practices that are of concern to Buddhism alone, but the Buddhist philosophy of interdependence, as well as the Buddha science of mind and human emotions, are of great benefit to everyone. Unquote. The spiritual leader said, while, quote, modern science has developed a highly sophisticated understanding of the physical world, including the subtle workings of the body and the brain. Buddhist science, on the other hand, has devoted itself to first-person understanding of many aspects of emotion
areas that are still new to modern science. Unquote. Philosophy enables four noble truths to be understood, which are the truth of suffering, dukkha, the truth of origin of suffering, samudaya, the truth of cessation of some suffering, nirodha, and the truth of the path to the cessation of suffering, marg. The Buddha is often compared to a physician. In the first two noble truths, he diagnosed the problem, suffering, and identified its cause. The third noble truth is realization that there is a cure. And the fourth noble truth, in which Buddha set out the eightfold path, is the prescription, the way to achieve a release from suffering. Today, in this scientifically and technologically developed global village, though there are many amenities for easy living and pleasure, people are both physically and mentally not satisfied and do not have a feeling of security. When the mind is satisfied that the person is free of physical danger, the mind produces an experience of safetiness. In the world today, there are many multinational and multipurpose projects which are vast for the development of countries. But people are not satisfied by what they have. There is no contentment. Craving, grasping, arising, and perishing are the main features of the world. When one thinks of the modern life, one can think in terms of a great degree of optimism and an equal degree of pessimism. One can be so pleased that we live today at a time when there seems to be nothing that man cannot conquer, except few diseases and places in the universe. However, the pessimistic aspect is that we have, in the process, lost something. And of course, we are watching with great interest the unfolding of the COVID and its exercise of putting the humankind at its control. At the same time, virus to be controlled by vaccine, that project is also on. And when the vaccine comes, who can guarantee that the virus won't mutate and again bring back the same havoc that it is at present doing, and in a different form? So this thing goes on. And in Hinduism, we have explained it very well that while the work of the Creator goes on, the work of the uh, the preserver maintains, and the destroyer also goes on. So all this are the rules of the world. Buddhism has given a great philosophy to understand that, and I have closely watched the Japanese society to understand and how at peace the Japanese society is with itself. So, despite being losing so many people, innocent people, men, women, and children by the two atom bombs, Japan surged ahead in terms of development, and it has the world's highest life expectancy, the highest numbers of people living beyond a certain age, and that comes out of tremendous satisfaction of what God has given and what they can make out of this. But at the same time, being a very responsible person or responsible society or responsible civilization to maintain what nature has given and keep the nature desire in its pristine glory. One can be so pleased that we live today at a time when there is
seems to be nothing that man cannot conquer. However, having seen the destruction, we come to understand Buddhism has an application today and has a place in modern life because of its timeless relevance and emanating from a set of eternal values. Modern developments have nothing to offer but insecurity and competitiveness, as well as tensions and boredoms associated with them. And this is felt by everybody. Although at the initial stages of childhood and youth, the people are enthusiastic and gradually they come to terms. However, it is absolutely necessary that the humankind should always be optimistic rather than pessimistic. And pessimism brings in a big change in psychological aspects of the development or underdevelopment of human being, because then you start sort of seeing that fate is what is more important, and we are all prisoners of fate. I want to contend that we are not prisoners of fate. We have been put in this world by God because, not because what is fated to us must happen, but because we must create the next phase of betterment. But this cannot happen unless and until we uh, maintain the pristine glory of the nature. We maintain that the nature is servopari. We have to ensure that the nature or the environment remains good, remains such that we can be assured that 5,000 years hence, Earth will be good, and all our descendants would remain the children of the environment, of the nature, of Mother Earth, and be able to get the best out of this. I often say this, that everywhere, wherever I have gone and talked, whether it's in the adult society or it's a children gathering, I have talked about the 5,000 years of our ancestors and of our glory of our past. But what about 5,000 years hence? We have to ensure that 5,000 years hence, not only 5,000 years, 10,000, 20,000, 50,000 years hence, the children of the earth must get the best of the society, best of the resources, and therefore we should not consume more than what is available. So, which means that we should, at the end of each of our lives, we should leave the earth as it was, if not better than when we were born into this earth. So this is the kind of a thing, and this is what Buddha has taught. Because so Buddhism offers a very few simple, efficacious method to combat that. Buddhism has a role in our life, and a role in which we, from the birth of Buddha, birthland of the Buddha, have an important part to play. It is our responsibility to share our thinking, knowledge, and experience with as many as possible, so that ultimately we see that the message of Buddha continues. The Vishwaguru, the status of Bharat is because of this extremely important. We should share our feeling, but we should show with what we do that we can be really called Vishwaguru. And we have to preserve all that what the nature has given. The entire philosophy of Buddha has been a guiding principle of many countries and many societies. We should make those societies or those countries participate in our discussions and our progress. And so Bodh Gaya, in fact, is a very, very good place where I saw the numbers of different countries, from Mongolia
Mongolia, Japan, Korea, Sri Lanka, Vietnam, and many other countries have put their mud, and their philosophers and their students come and they understand. And so life is extremely very pleasant in Bodh Gaya. So I would strongly urge that this dialogue should not be just a dialogue over a period of 2 or 3 days in a year, but this dialogue should continue till the young people and the scholars of this all these countries which follow the precepts of Buddhism should meet and discuss, and also come together to see how do we ensure a better tomorrow than what it is today. I would urge all the delegates who have come from different countries and all the delegates who are from India, from Bharat, from this land which gave birth to Prophet Buddha. A very good conference, and congratulate everybody who have been uh, been putting up their papers. I'm not able to come to IGNCA and partake in these discussions, uh, but I'm sure that what I'm missing would be for me only. Everybody else would have a tremendous benefit from attending and understanding whatever dialogue goes on. थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब अच्छी तरीके से रहें, सही रहें और सलामत रहें, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं आयोजकों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त, इतनी अच्छी तरीके से आयोजित किया, और खास तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और उनके सहयोगी जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि ये कॉन्फ्रेंस संपादित हो और आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। There are three parts of this program: religion, art and archaeology, and heritage. If you look at the religion, in fact, there are two dimensions broadly when we reference to the Bodh Gaya Hinduism. And Rai Sahib particularly mentioned to revise this terminology. It would be better to introduce in a wider audience in India and abroad both Sanatan Dharma, and there are two parts of the Sanatan Dharma, Shaivism and Vaishnavism. And Dr. Sinha in the beginning of the plenary session had pointed out particularly in the historical context of Bodh Gaya, when you talk about the Bodh Gaya, there is multi-religious, multicultural space in the center, and in this context there are two mainstream exist in Bodh Gaya historically, Shaivism and the Vaishnavism. Second part under the broad categories of religion, introduction to Buddhism. And there are three subsets of the Buddhism: historical background, forms of Buddhism, different forms of Buddhism practiced in modern day Asia, Japan, Korea and Burma. Always when we talk about the Bodh Gaya, basically it signifies the international place, and sometime in a popular parlance, yes, Bodh Gaya, it is look like it is same as like Makkah. So in this context, when you visit the Bodh Gaya, always get a sense about the international feeling or international space of Bodh Gaya. In this context, it's a good thing to connect Buddhism with China, Japan, and Korea and Burma. And third subset of the introduction of Buddhism, Bodh Gaya and Buddhism, and there are three subsets: broader regional context of Buddhism and Bodh Gaya, multiple religious Buddhism, Jainism, and Hinduism. Second category of online course, basically focusing on art and archaeology. Fine. And there are three subsets: understanding Mahabodhi temple complex, layers of the temples, specific aspects, images, temples architecture, pillars, and site museum. A second subset of the under the category of art and archaeology should be outside the temple and the museum, stupas and other excavation. And there are three subsets:
back roll of a stupa, Therail monasteries, and newer monasteries, including the Savite monasteries. And third, an important aspect when we talk about Bodh Gaya in a past and present context, the unit 3, you can say, heritage. In the course, basically, there are 3 units. First unit, religion, second unit, art and archaeology, and third and last unit should be heritage. There are 5 subsets, but broadly, just I would like to briefly just share informatively how people engage with Bodh Gaya and explaining the heritageization of Buddhism and current activities at Bodh Gaya. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम तीसरे बोध गया डायलॉग में एक बार फिर से देश काल सोसाइटी के साथ जुड़े हैं और हम लोग निरंतर इस संवाद को आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से लगातार कुछ न कुछ काम हम देश काल सोसाइटी के साथ भी कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि अब हम चूँकि 2 बोध गया डायलॉग्स हो चुके हैं और जैसा कि अभी हमारे तीनों सम्माननीय वक्ताओं ने कहा कि तीसरे बोध गया डायलॉग के बाद अब डायलॉग को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। तो अब डायलॉग को हम लोग एक्शन में कैसे बदलें, उस ओर हमारा ध्यान है। वो एक आगे बढ़ाने का, इस संवाद को कार्य रूप में परिणित करने का एक चरण है जिसमें हम लोग ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बोध गया की हेरिटेज कल्चर की बात करेंगे और उसके वर्तमान संदर्भ में महत्व की बात करेंगे। तो इस दृष्टि से वो कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है जो 45 दिन का एक पाठ्यक्रम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि जब पहला बोध गया डायलॉग हमने प्रारंभ किया था तब आदरणीय शेखर दत्त जी, आदरणीय मुले जी जैसे विद्वान, अध्येता, विचारक हमारे साथ थे जिन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया, दिशा दर्शन दिया जिससे हम अपने पूरी कार्य योजना को आगे बना सकें। और सौभाग्य की बात है कि तीसरे बोध गया डायलॉग के बाद 2 ऐसे लोग हमारे इस डायलॉग में जुड़े हैं जो इस कार्य योजना को एक्चुअल रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आदरणीय शक्ति सिन्हा जी कुशल प्रशासक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, लेकिन इस वक्त जो दायित्व वो संभाल रहे हैं वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल हैं और इस नाते से उनका हमारे बीच होना इस बोध गया डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ आदरणीय श्री गंगा कुमार जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, बिहार कैडर के अधिकारी हैं। वैसे उन्होंने ज़रूर बताया कि वो अपने इस काम को कुर्सी से बहुत अलग रख के करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुर्सी के महत्व को हम सभी जानते हैं और जब कभी वो बिहार में जाकर कोई बड़ी कुर्सी संभालेंगे तो निश्चित तौर पर बोध गया डायलॉग के लिए बहुत मदद मिलेगी। और खुशी की बात है कि एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो संस्कृति और पर्यटन के फ़र्क को समझता है और संस्कृति और पर्यटन को एक तराजू में नहीं तौलता और उसके तराजू में संस्कृति का पलड़ा बहुत भारी है। ये हम सबके लिए बहुत संतोष की बात है। हर एक चीज़ को क्वांटिफाई करके देखना ये शायद इस हमारे वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक जीवन की विवशता हो गई है, लेकिन भावनाओं को, विचारों को और एक तरह से आध्यात्मिकता को क्वांटिफाई करना शायद किसी के लिए संभव नहीं होता। इस दृष्टि से जब भी हम बोध गया डायलॉग के संदर्भ में कोई एक्शन प्लान बनाएं, उसका एक्शन प्लान उस तरह से क्वांटिफाई निश्चित तौर पर नहीं हो सकता जिस तरह से क्वांटिफाई आमतौर पर सरकारी योजनाएं होती हैं, क्योंकि ये एक वैश्विक भावनात्मक केंद्र है। तो इसे एक वैश्विक भावनात्मक केंद्र के रूप में हम कैसे विस्तृत कर सकते हैं, कैसे विस्तार दे सकते हैं, ये हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैंने 5 आर का एक सिद्धांत अपने सामने बनाया कि इन 5 आर पर अगर हम काम करें तो पहला आर है हमारा रीच, कि हम हमारी पहुंच को कैसे बढ़ाएं। और उस रीच का आशय गंगा कुमार जी ने भी बहुत अच्छी तरह बताया कि रीच यानी सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल समाज तक की रीच नहीं है, वो जन जन तक जाने की रीच है, नीचे तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे स्थान के महत्व को और विचार के महत्व को बढ़ाने की बात है। और जैसा कि शक्ति सिन्हा जी ने भी बताया कि विचारों में भी उसकी रीच कैसी होनी चाहिए। आदरणीय मुले जी ने भी बताया कि ये रीच ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी। तो रीच कैसे बढ़े, इसके बारे में पहले आर के संदर्भ में हम सोच सकते हैं। दूसरा आर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रिसर्च। आमतौर पर जो रिसर्च होता है, अभी देश में दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो भी नैरेटिव है वो सब हमने आयातित नैरेटिव को ही एक तरह से सील ठप्पा लगा के अपने लिए अनुकूल बना लिया है। लेकिन अब हम आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर हम उसी नैरेटिव को गुनते रहेंगे तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बुरी बात होगी।
तो हम ऐसे शोधार्थियों को तैयार करें जो नया रिसर्च, नया नैरेटिव हमारे सामने लाएं। बोध गया के संदर्भ में अभी मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब आदरणीय सिन्हा जी ने जो एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया, मैं नहीं पढ़ पाया था, कहीं भी नहीं पढ़ा था मैंने उसको। तो ऐसे नैरेटिव्स जो जो हमें एक नई दृष्टि देते हैं, नई दिशा देते हैं, उस दृष्टि से हम कैसे बात करना चाहें, इसको सोचने के लिए रिसर्च का कैसे हमारा ओरिएंटेशन हो, इस पर बात करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है रिसोर्स। हम कैसे संसाधन जुटाएं? क्या पूरे समय हम लोग सरकार आश्रित रहें, या पूरे समय हम किसी और संस्थाओं पे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे या बिजनेस घरानों पर आश्रित रहें, या कैसे संसाधन बने जो पूरे के पूरे समाज में कहीं न कहीं प्रेरणा और जागृति देते हैं। ये रिसोर्सेज का चक्कर ये भी है कि जब तक हम समाज से रिसोर्सेज को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक समाज उसको कहीं न कहीं ओन नहीं करता। जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग की बात है, वो नहीं आती। तो एक 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 सरकारी तौर पर बनाया हुआ मठ बने, पर्यटन स्थल बने, या जनता के बीच से उपजता हुआ, भावनात्मक रूप से उपजता हुआ ऐसा कोई केंद्र बने, ये रिसोर्सेज को देखने की ज़रूरत है। और उन रिसोर्सेज को हम लोग भी देखें, चाहे देशकाल सोसाइटी भी देखे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी देखे, और भी जो संस्थाएं इसमें जुड़ें वो देखें। चौथा जो आर है वो है रेफरेंस। बोध गया कैसे पूरे विश्व के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है, इसकी बात हमको करनी चाहिए। और ये रेफरेंस पॉइंट अभी संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। मक्का, क्या हम मक्का से बोध गया की तुलना कर रहे हैं? क्या हम काशी से बोध गया की तुलना कर रहे हैं? या हम बोध गया के रूप में एक रेफरेंस पॉइंट विश्व में क्रिएट करने की बात कर रहे हैं? तो ये रेफरेंस क्या बनना चाहिए, इसके बारे में भी सोचना होगा। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हर बार हर वृत्त की एक धुरी अलग हो सकती है। हम बोधगया के संदर्भ में इस वृत्त की धुरी को कहाँ टिकाते हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। और पांचवा जो महत्वपूर्ण आर है वो है रीजुविनेशन। ये जैसा कि दलाई लामा जी के संदर्भ में कहा गया कि ये शताब्दी क्या शांति, सद्भाव और सौहार्द की शताब्दी होगी। मुझे लगता है ये शताब्दी एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शताब्दी हो सकती है, कल्चरल रीजुविनेशन की शताब्दी हो सकती है। अभी 4-5 वर्ष पूर्व जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की नई ट्रस्ट का गठन हुआ था, तो हमारे सारे सम्माननीय न्यासियों ने आदरणीय राम बहादुर राय जी की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में इस बात को तय किया कि कैसे ये केंद्र कल्चरल रीजुविनेशन का केंद्र बन सकता है। इस तरह से हम इस बात पर विचार करें कि कैसे बोध गया एक तरह से पूरे विश्व में एक रीजुविनेशन का सेंटर बन सकता है। तो अगर हम अभी कार्य योजना में ये 5 आर हमारे सामने रखें, तो इन 5 आर से भी हमें काम करने के लिए इतनी सामग्री मिल जाएगी कि हम आगे के कुछ वर्ष लगातार इसमें काम कर सकते हैं। आदरणीय मूले जी का होना, आदरणीय सिन्हा जी का होना, आदरणीय गंगा कुमार जी का होना, आदरणीय शेखर दत्त जी का होना, डॉक्टर श्रीमती सुष्मिता दत्त जी का होना, ये इस तमाम लोग हमारे साथ हैं जो हमें मार्गदर्शन देंगे आगे बढ़ने के लिए। ज़रूरी ये है कि हम कैसे आगे बढ़ें। बुद्ध होना एक बात है, बौद्ध होना एक बात है, और बोधि प्राप्त करना एक बात है। अभी तक हम लोग इन तीनों में कहीं न कहीं अपने आप को फंसा हुआ सा पाते हैं। हमारे गंतव्य क्या है ये समझ में नहीं आता। भगवान बुद्ध की पूरी वाणी और पूरे के पूरे दर्शन को समझें, तो मुझे लगता है कि हम जिस दिन इन तीनों में फ़र्क करना सीख जाएंगे, उस दिन शायद कहीं न कहीं हम उस एनलाइटनमेंट की बात करेंगे जिसकी बात आदरणीय मूले जी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हम सबकी दृष्टि से अपना-अपना एनलाइटनमेंट का बिंदु ढूँढते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस बात को पिछले 9 महीने में हमसे ज़्यादा और किसने महसूस किया है? पिछले 9 महीने में आसक्ति और अनासक्ति, परिग्रह और अपरिग्रह, माया, मोह और ममता, ये सारे शब्दों ने अपनी परिभाषाएं बदल दी हैं। कल तक जो था वो आज है, इस बात में भी हम आश्वस्त नहीं हैं, और जो आज है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में भी हम आश्वस्त नहीं हैं। एक छोटे से जीवाणु ने हम सबके जीवन में इतनी बड़ी अनिश्चितता भर दी कि हम नश्वर और अनश्वरता के बीच, निश्चित और अनिश्चित के बीच, अनंत और अनादि के बीच सारे फर्कों को भूल गए। यही तो भगवान बुद्ध कहते थे कि जो क्षण है, सिन्हा जी ने बार बार कहा, जो क्षण है उसे पूरी तरह से जीना सीखो, और उसका पूरा का पूरा प्रतिदाय समाज को, राष्ट्र को, देश को देना सीखो। तो इस दृष्टि से अगर हम सब लोग काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बोध गया डायलॉग की बहुत अच्छी फलश्रुति होगी। आज हमारा परम सौभाग्य है
कि ऐसे विद्वानों की उपस्थिति से बोधगया डायलॉग, तीसरे बोधगया डायलॉग का प्रारंभ हुआ है। देशकाल सोसाइटी के समर्पित लोग संजय कुमार जी के नेतृत्व में काम कर ही रहे हैं। संजय कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे रहकर काम करते हैं। उन्होंने तमाम साहित्य छापा है, उसमें कहीं संजय कुमार जी का आप चित्र भी नहीं देखेंगे। तो ऐसे अपरिग्रह से कार्य करने वाले लोग जब होंगे तो निश्चित तौर पर बोधगया डायलॉग और बोधगया के सारे उद्देश्यों की फलश्रुति होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Our special thanks go to all the distinguished dignitaries in the audience and also to those who are connected with this session online for sparing their valuable time to be with us. Finally, I solicit your continued support and encouragement for this program in future also. Thank you all once again.